Assalamu alaikum. I am Sajid from Qazi Group of Schools, Lahore. This is chapter number 4, and our today's topic is exercise. Question number 1 is the fill in the blanks. Number 1, air pollution is caused by air dash pollutants. Number 2, carbon dash is a poisonous gas. Carbon monoxide is a poisonous gas. The temperature of Earth is increasing due to greenhouse effect. In the presence of sunlight in the presence of sunlight dash form chlorine atom which react with ozone to form oxygen gas O2 CFC chlorofluorocarbon. Motor vehicles are the major source of dash pollution, air pollution. Second question, choose the correct answer. Number 1, the rain which contain toxic gases and affects plant, animals, building, etc. is called acid rain, smoke, seasonal rain, ozone. A option है acid rain. How can we get rid of excess carbon dioxide in the atmosphere? By planting more trees, by drinking less water, by burning waste, by burning more wood. तो इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगी क्योंकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे. एयर पोल्यूशन कैन हार्म plants, materials, human and other animals, all of the above. इन तमाम जो आपको मटेरियल्स या ऑप्शन दिए गए हैं सबको जो है वो एयर पोल्यूशन अफेक्ट करती है. उसके बाद नंबर 4, a natural phenomenon that becomes harmful due to pollution is global warming, ecological balance, greenhouse effect, acid rain. greenhouse effect जो है ये ठीक है. Number 5, most of the earth animals lives in rivers, mountains, forest, deserts. Forest. Number 6, one of the best solution to get rid of non-biodegradable waste is recycling is the correct option. Which process removes carbon dioxide from the atmosphere? Respiration, photosynthesis, decay of dead body of living things, burning of fossil fuel. तो बी ऑप्शन ठीक है, photosynthesis. Number 8, which gas can cause coughing, chest pain and shortness of breath? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है. Number 9, chlorofluorocarbons react with ozone layer and damage it. It is called ozone formation, ozone replication, ozone loss, ozone depletion. ozone depletion जो है वो correct option है. Number 10, the ozone hole in the upper atmosphere causes A option increased cancer risk, global warming, smoke, acid rain. तो A option है increased cancer risk. Number 3, write F for false statement and T for correct statement. Air pollution is not as dangerous as it is generally thought. गलत बात है, एयर पोल्यूशन डेंजरस होती है, तो ये फॉल्स है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द एयर पोल्यूटेंट्स दैट कैन डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर. ट्रू है ये. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. ये फॉल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है. ग्लोबल वार्मिंग कैन बैडली अफेक्ट द सीजन्स. ट्रू है ये. फॉरेस्ट हेल्प टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. ये भी ट्रू है. उसके बाद है गिव शॉर्ट आंसर्स. पहला क्वेश्चन है व्हाट आर पोल्यूटेंट्स. पेज नंबर 28 पे जो है वो इसकी डेफिनेशन है, मैं आपको मार्क करवा देता हूँ. पहले भी हमने मार्क की हुई है. ये आप देख सकते हैं. पोल्यूटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी सब्सटेंस दैट मेक्स द एयर, सॉइल और वाटर harmful for health and environment is called a pollutant. Pollutant are the main causes of pollution. और इसके साथ साथ आप 2-3 पोल्यूटेंट्स के जो नाम है वो एग्जाम्पल के तौर पर वो भी लिख दीजिएगा. उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज़ इट एडवाइज्ड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन अ पार्क. क्वेश्चन है कि मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में क्यों जाना चाहिए. ये क्यों कहा जाता है कि अगर आपने वॉक करनी है तो आप किसी पार्क में जाके वॉक करें. इसका आंसर हमारी बुक में तो नहीं दिया, लेकिन जितना हमने पढ़ा है या समझा है उससे हम इसका आंसर जो है वो लिखेंगे.
और मैंने राइट अप किया हुआ है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अच्छा जी, आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, बिकॉज ऑफ फ्रेश एयर इन द पार्क ड्यू टू लॉट्स ऑफ प्लांट्स। क्योंकि पार्क के अंदर जो है वो ताज़ा हवा होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से पौधे, प्लांट्स, ट्रीज जो है वो मौजूद होते हैं। एंड मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। आल्सो हमारी सेहत के लिए भी मॉर्निंग वॉक अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे क्या फ़ायदा होता है? लोअर द ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर कम रहता है। इम्प्रूव्ड ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो ठीक रहती है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ बाय 35%। वो लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, 35% उस पर जो हार्ट की जो डिज़ीज़ है उनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं। 35% का मतलब ये उन लोगों को फ़ायदा होगा जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। ऐसे लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं उनमें ये देखा गया कि 35% तक जो है उनको हार्ट डिजीज़ ना होने के चांसेस होते हैं, एज़ कम्पेयर टू दोज जो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। पेज नंबर 29 पे इसका आंसर मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैंने निशान लगाया हुआ है पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन में। मेन सोर्सेज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रेज एंड द इंसुलेशन मटेरियल। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सडन चेंजेस इन वेदर इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसकी रीज़न है। आप ये लिख सकते हैं, द रीज़न ऑफ सडन चेंज इन वेदर इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो पेज नंबर 32 पे एग्जाम्पल दी हुई है, वो आप लिख देंगे। पहले आपने बताना है कि ये रीज़न जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, सडन चेंज इन वेदर, और इसकी एग्जाम्पल आप पेज नंबर 32 से देंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन किया हुआ, उसका आंसर, द वेदर में चेंज एंड स्टार्ट टू बिहेव इन स्ट्रेंज वेज। इट मे रेन अ लॉट इन वन कंट्री वाइल अनदर कंट्री डज नॉट रिसीव एनी रेन एट ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग के बाद फिर आपने ये लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। पेज नंबर 33 पे इसका आंसर मौजूद है। ये आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 मार्क किया हुआ नज़र आ रहा है। पहली लाइन के लास्ट से लेके लास्ट लाइन में लिखा हुआ है डिस्ट्रॉइंग तक, यहाँ तक ये आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद है, नेम सम मटेरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो इसमें ग्लास एंड प्लास्टिक्स आ सकता है, और ग्लास आपको पता है डिफरेंट तरह के जो ग्लास मौजूद होते हैं मार्केट में, मुख्तलिफ तरह के बर्तन जो हैं वो ग्लास के अवेलेबल हैं। प्लास्टिक से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती है, तो हम बस कॉमन वर्ड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ग्लास एंड प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। जी, उसके बाद डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एयर पोल्यूशन। पेज नंबर 28 से 30 तक इसका आंसर मौजूद है। सबसे पहले आपने एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी होगी, और उसके बाद जो है इसके एयर पोल्यूटेंट लिखने हैं, और फिर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन पूरा आपने एक्सप्लेन करना है इसको। यहाँ आप देख सकते हैं एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद जितने भी एयर पोल्यूटेंट हैं सब के बारे में आपने बताना है, और इसके अलावा जो है ये आपके पास जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं इनको आपने बताना है, और ये सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन है ये भी आपने उसी पहले लॉन्ग में ऐड करना है मुकम्मल। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन डिफॉरेस्टेशन। पेज नंबर 34 पे आंसर है, मुकम्मल पेज इसका आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं मैंने मार्क यहाँ पे किया हुआ है डिफॉरेस्टेशन, और यहाँ लास्ट तक आपके पास जो है ये इसका आंसर मौजूद है। उसके बाद है, डिस्क्राइब हाउ कैन 3R रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग हेल्प टू सेव द अर्थ। पेज नंबर 36 पे इसका आंसर मौजूद है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने मार्क कर दिया हुआ है, ये अभी हमने रिसेंटली ही पढ़ा है 1-2 दिन पहले, तो लास्ट तक जो है वो इसका आंसर मौजूद है। उसके बाद है, डिस्क्राइब सम वेज टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब सम वेज टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया है, इसका आंसर पेज नंबर 37 पर है। यहाँ से आप देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट से लेकर ये टिप्स तक, यहाँ तक ये मैंने मेंशन किया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। और उसके बाद है, राइट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये टॉपिक हमने पढ़ा भी हुआ है, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आपको जो है वो याद कर लेने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।